Now, hello students. Good morning everyone. Now this is time for your chemistry class. जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि आज से हम नया चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। नए चैप्टर में हमें आगे की टॉपिक पे बात करना है। पिछले क्लास में जो तुम लोगों ने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो आज के क्लास में हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की स्टडी जो कर चुके हैं उसमें जो जो एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में, उनके कंपाउंड्स या उनके खुद के बारे में। जैसे कि ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है, ग्रुप 16। शायद पिछले क्लास में हमने बताया था तुम लोगों को 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में। तो आज हम 15 ग्रुप एलिमेंट, जो 15 ग्रुप है पी ब्लॉक का, उसी में जो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनके कंपाउंड क्या क्या हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। प्लीज वेट 2 मिनट। आज हमें डाई नाइट्रोजन, या जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, 15 ग्रुप का पी ब्लॉक में 15 ग्रुप का ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। इसके बारे में हम अब आज पूरी उसकी केमिस्ट्री, किस तरह से ऑकरेंस और प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ये सारी बातें नाइट्रोजन के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और 15 ग्रुप की भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जो फर्स्ट मेंबर है 15 पी ब्लॉक में 15 ग्रुप का, उसका फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, जिसको हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Nitrogen belongs to second period of the periodic table and is a third member of P block series. Its neighbor in periodic table are carbon, oxygen and phosphorus. नाइट्रोजन 15 ग्रुप में प्रेजेंट है फास्फोरस के साथ, 14 ग्रुप में इससे पहले के सेकंड पीरियड में होता है कार्बन, और इसके आगे 16 ग्रुप में है ऑक्सीजन। Scheele in 1772 showed that air is a mixture of two gases, fire, that is oxygen, which supports combustion and respiration, and foul air, which does not take part in combustion. D. Rutherford named the foul air as mephitic air, that is killer of life. Later on, the element was found to be present in nitrate, and thus the name nitrogen was proposed like hydrogen and oxygen. Nitrogen exists in elemental form as diatomic molecules. It is therefore called di-nitrogen. Nitrogen is important for life processes as it is constituent of plant and element proteins, amino acids and nucleic acid। इस सब के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, important constituents है ये इन compounds का। It exists in atmosphere is very important because act as an inert diluent for the highly reactive gas, that is oxygen. Without nitrogen, every spark in our atmosphere would cause a massive fire. Nitrates and other nitrogen compounds are extensively needed as fertilizer and explosive.
Word production of dinitrogen is growing rapidly. It is employed in large amount for maintaining an inert atmosphere in iron and steel and other metallurgical industries and in oil refineries for purging catalytic cracking vessels, reforming vessels and pipes. Liquid nitrogen is used as refrigerant. Large amount of nitrogen are required for the manufacture of ammonia. Ammonium compound and calcium cyanide also. Now preparation of dinitrogen or it is known as nitrogen. Nitrogen can be obtained from the following two sources, nitrogen compounds and second from nitrogen from air. First है nitrogen from nitrogen compounds. इसमें nitrogen in the laboratory can be obtained by heating ammonium nitride. Ammonium nitride is not a stable compound and thus it is first formed as an intermediate product by heating an ammonium salt with sodium nitride. तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो हमें अमोनियम नाइट्राइड मिलता है. उसके बाद हम इसको अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और वाटर मिलता है. Small amount of NO and HNO3 are also found in this reaction. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous solution of H2SO4 containing potassium dichromate. तो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन से इसे पास करते हैं तो नाइट्रोजन प्योर नाइट्रोजन हमें मिलती है. Cr2O3 plus H2O अलग होता है. It is also obtained by heating of ammonium dichromate. Nitrogen is collected by downward displacement of water. Second method, pure nitrogen can be obtained by passing the ammonia vapors over heated CuO, that is cupric oxide. NH3 plus CuO इनका रिएक्शन होता है तो N2 प्रोड्यूस होती है और साथ में Cu इसका रिडक्शन हो जाता है और प्लस वाटर. NH3 can also be oxidized to nitrogen by Cl2Br2, यानी chlorine, bromine and hypochlorite, a hypobromite और bleaching powder. इसका रिएक्शन आगे तुम्हें मिलेगा देखने को. It can also be obtained by the action of nitrous acid on यूरिया. यूरिया ये होता है फार्मूला इसका NH2CONH2 यानी दो एमिनो ग्रुप जुड़े हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ. नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होगा तो भी इसी तरह से नाइट्रोजन मिलती है. प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन इन स्मॉल अमाउंट बाय हीटिंग सोडियम और बेरियम एजाइड्स इन वैक्यूम. बेरियम एजाइड्स या सोडियम एजाइड Na3 ये BaNa3 होल ट्वाइस. तो Ba प्लस 3N2 मिलता है यानी इसको अलग कर देता है मेटल को. अलग हो जाती है मेटल गर्म करने पे वैक्यूम में और ये 2Na प्लस 3 यानी नाइट्रोजन हमें मिलती है. तो ये था कुछ जनरल प्रिपरेशन थे. एक तो एयर से हमें मिल जाती है और दूसरा हमें कहाँ मिलती है कंपाउंड से नाइट्रोजन हम बना सकते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन. तो पहले हम फिजिकल देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. डाई नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस. It is slightly lighter than air as its vapor density is 14. Second, it is sparingly soluble in water. However, its solubility increases rapidly with increasing pressure. This is a major problem for deep sea divers as they dive. Additional dinitrogen dissolves in their bloodstream.
When they return to surface, the decreasing pressure brings the dinitrogen out of solution and it forms tiny bubbles, particularly around the joints. Prevention of this painful and sometimes even fatal problem requires the divers to return to the surface very slowly. To avoid this hazard, oxygen helium gas mixtures are now used for deep diving because helium has much lower blood solubility than dinitrogen. Dinitrogen is non-poisonous in nature, but animals do not survive in its atmosphere due to absence of oxygen. It can be liquefied to a colorless liquid. Boiling point होता है जिसका कि 1 minus 195.8 degree centigrade or 72.2 Kelvin. Its melting point is 63.2 Kelvin. Dinitrogen exists in two solid allotropic forms, alpha nitrogen with cubic crystalline structure and beta nitrogen with hexagonal crystalline structure. Dinitrogen has low thermal and electrical conductivity. It does not help in the combustion. Dinitrogen itself is a non-combustible. It is absorbed by charcoal. Now, chemical properties of nitrogen. Dinitrogen is chemically inert under ordinary conditions as the blood dissociation energy is very, not blood. Dinitrogen is chemically inert under ordinary conditions as the bond dissociation energy is very high. However, it shows chemical activity under high temperature. It neutral to litmus. It is neutral to litmus. Now, dinitrogen combined with oxygen under the influence of very high temperature like electric spark, then it forms nitric oxide. This reaction forms the basis of manufacture of nitric acid. This is Birkeland and I process. Now, dinitrogen combined with hydrogen in the presence of a catalyst, final divided iron at 200 atmospheres and 673 to 773 Kelvin temperature to form ammonia, N2 plus 3H2, 700 Kelvin at 2000 atmospheric pressure और इसमें catalyst होता है आयरन तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विथ मेटल एट रेड हीट टू फॉर्म नाइट्राइड्स अब मेटल से इनका किस तरह रिएक्शन होता है लिथियम से ये रिएक्शन करती है हीट करने पर ये बनाती है लिथियम नाइट्राइड इसी तरह मैग्नीशियम से उसी टेम्परेचर पे मैग्नीशियम नाइट्राइड एल्युमिनियम से एल्युमिनियम नाइट्राइड और कैल्शियम के साथ हीट करने पे कैल्शियम नाइट्राइड नॉन मेटल लाइक बोरान सिलिकॉन एंड एट ब्राइट रेड हीट आल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन बोरान नाइट्राइड बनाता है सिलिकॉन नाइट्राइड Now, dinitrogen combined with calcium carbide to form calcium cyanamide. Calcium carbide plus N2 तो ये calcium cyanamide बनता है कार्बन रिड्यूस होता है The mixture of calcium cyanamide and carbon is technically known as nitrogen. Calcium cyanamide reacts with water to form ammonia. कैल्शियम साइनामाइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है और अमोनिया बनती है नाउ नाइट्रोलिन इज यूज्ड एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर व्हेन डाइनाइट्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड कार्बन एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड एल्यूमिना कार्बन नाइट्रोजन एल्यूमिना पे इन दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना ओर दैट इज
process, aluminum nitride is hydrolyzed with steam to give alumina. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये चेक करते हैं तो एल्यूमिना बनता है प्लस अमोनिया। सरतेक प्रोसेस में देखा था एल्यूमिनियम के। नाउ एक्टिव नाइट्रोजन, व्हाट इज एक्टिव नाइट्रोजन? When an electric discharge is allowed to pass through dinitrogen under very low pressure, about 2 mm, a brilliant luminescence is observed which persists for some time after the stoppage of the discharge. It is observed that nitrogen after the discharge is more active. This nitrogen is termed as active nitrogen. This form is not quite stable and gradually changes to normal form. Active nitrogen reacts readily with many metals to form nitrides. It reacts with a number of non-metals, that is sulfur, phosphorus, iodine, etc. It is able to decompose many organic compounds, जैसे C2 एसिटिलीन प्लस N2 का रिएक्शन होता है तो ये कंपाउंड बनता है C2N2 plus H2. The exact nature of active nitrogen is not yet वही reaction है. Now uses of dinitrogen. नाइट्रोजन के बारे में इतनी स्टडी किया, केमिस्ट्री उसकी जानी, अब उसका क्या कितना यूज है इस बारे में हम देखते हैं. इट इज यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन सर्टेन मेटलर्जिकल ऑपरेशन एंड ऑयल रिफाइनरीज. It is used for filling electric bulbs. It is used in the manufacture of ammonia, nitric acid, calcium cyanide, and other nitrogen compounds. Liquid nitrogen is used as a refrigerant to preserve biological materials and in freezing food articles. Dinitrogen gas filled thermometers are used for measuring high temperature. Liquid nitrogen is used as a cryogen. It has used in medicine. It is cryosurgery. It is used in cooling a localized area of skin prior to removal of a wart or other unwanted or pathogenic tissue. Large quantity of nitrogen is used as blanketing gas whose purpose is to protect a material from oxygen during processing and storage. Thus, electronic components are often made under a nitrogen atmosphere. Now, nitrogen fixation, this is an important point. The conversion of atmospheric pressure, atmospheric nitrogen into useful nitrogen compound is known as fixation of nitrogen. The fixation of nitrogen involves the following methods. First, natural fixation, conversion of atmospheric nitrogen into nitrates occur in normal way to electrical disturbance and by certain bacteria under nitrogen cycle. The major source of numerous nitrogen compound on earth is air. Atmosphere contains nitric and nitrous oxide formed by the photochemical reactions between nitrogen and oxygen as well as by electric discharge. Traces of free ammonia is also found in nature. They are washed down along with rain and the nitrous and nitric acid formed are neutralized by the lime in the soil, giving the nitrate of calcium, which is the food for the plants. N2 plus O2 lightning जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ रिएक्शन होता है तो ये तुम्हारा 2NO बनता है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2NO2 बनाता है. उसके बाद ये 2NO2 वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड. और नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है जो एज ए जो कि एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है या इसका और भी इम्पोर्टेंस है दूसरे कामों में.
Those bacteria which converts nitrogen into nitrite or nitrate, etc., are called nutrifying bacteria, while those which destroy the nitrogenous matter in dead plants, animals into N2 are called denitrifying bacteria. तो ये important point है. Those bacteria which convert nitrogen into nitrite or nitrate, ये useful compound होते हैं. इस तरह जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. एंड दोज विच डिस्ट्रॉय द नाइट्रोजनियस मैटर, दैट जैसे कि डेड प्लांट्स एनिमल्स इनटू नाइट्रोजन, ये कहलाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. तो ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो क्योंकि ये यूजलेस जो चीज़ें होती हैं उनसे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन का काम करते हैं. नाउ आर्टिफिशियल फिक्सेशन. Artificial fixation of nitrogen involve fixation of nitrogen into ammonia, that is Haber process. Fixation of nitrogen into nitric acid, Beckland and Ide process and Ostwald-Parrott process, ये आगे अभी तुम लोगों को पढ़ना है. Fixation into calcium cyanide and fixation into nitrite, etc. ये artificial fixation होता है. अब ये है नाइट्रोजन साइकिल. पूरा ये साइकिल है कि किस तरह से नाइट्रोजन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और किस तरह से फिर वापस उसका यूज़ होता है. अब यहाँ से चलते हैं. ये एयर, अमोनियम कंपाउंड्स इन सॉइल, नाइट्रेट्स इन सॉइल, चिली नाइट्रेट एक्सेट्रा, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे सॉयल में. सॉयल से ये प्लांट ग्रोथ होती है और प्लांट में के प्रोटीन में यहाँ ये स्टोर हो जाती है, और दूसरी तरफ ये तुम्हारी एयर से जो आ रही है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसे कन्वर्ट कर बनाने में काम कर देते हैं. उसके अलावा यहाँ एनिमल न्यूट्रिशन में एनिमल प्रोटीन में यूज़ होती है नाइट्रोजन, और इसी तरह इधर तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन, डिस्टिलेशन, ये सब होते हुए अमोनिया फॉर्म होती है, और ये अमोनिया सॉल्ट जो है यहाँ पे होता है. तो इस तरह से ये देख रहे हो कि पूरा ये नाइट्रोजन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें कि अमोनिया नाइट्रोजन जो है डिफरेंट कंपाउंड्स और एयर की नाइट्रोजन, फिर वो प्लांट्स में किस तरह से उसका यूज़ होता है, एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह से एक नेचर में ये जो इस तरह से ये सर्किल बनता है उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑक्साइड यहाँ बन रही है. तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो N2O, जो कि प्रिपरेशन करते हैं अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके, तो हमें मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड. प्रॉपर्टीज है इसकी: कलरलेस, अनरिएक्टिव गैस विथ पंजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट, काज लाफिंग हिस्टेरिया. तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं लाफिंग गैस भी कहते हैं. स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और ओ इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये बॉन्ड लेंथ दी हुई है इसकी. उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें नाइट्रोजन की. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को 3000 केल्विन तक गर्म करने पे ये बनती है. प्रॉपर्टीज हैं कलरलेस, रिएक्टिव गैस एंड पैरामैग्नेटिक. स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस तरह कहते हैं इसको. इसमें एक बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जो कि नाइट्रोजन का होता है, इसके साथ बनता होता है, और एक जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से. इस तरह का बॉन्ड जो बनता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है. ये है NO2. इसका स्ट्रक्चर हम अभी आगे भी बताएंगे. NO2 ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है. ये NO + O2 के रिएक्शन से बनती है. प्रॉपर्टीज है ब्राउन, रिएक्टिव गैस विथ पंजेंट ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक बट डाई
में राइज टू सॉलिड N2O4। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, डबल बॉन्ड के साथ N इस तरह से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और ये एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है दूसरी ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद है N2O3, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O4 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का जो ये डाइमेरिक फॉर्म है उसके साथ गर्म करने पे ये कंपाउंड बनता है, जो कि डार्क ब्लू इन लिक्विड और पेल येलो इन सॉलिड स्टेट में होता है। अनस्टेबल इन गैस स्टेट इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सिंगल बॉन्ड से 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। उसके बाद है N2O4 जो कि कलरलेस डाईमैग्नेटिक एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद NO2 बोथ इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट at 140 डिग्री सेंटीग्रेड 100% डिसोसिएटेड इनटू NO2। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है यहाँ पे। उसके बाद है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो HNO3 और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन से बनती है। ये कलरलेस है, आयनिक सॉलिड, एग्जिस्ट एज दिस फॉर्म sublime at 305 Kelvin to give gaseous molecule। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऑक्सीजन के साथ ये 2 नाइट्रोजन इस तरह से जुड़ रहे हैं, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड से, और ये क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इनकी स्ट्रक्चर अभी अलग से भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये शॉर्ट में यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ N2O। N2O is linear and unsymmetrical. Its dipole moment is quite low. It has 2 resonating structure। यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस पे, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस चार्ज एक्सेस चार्ज है, और यहाँ पे ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से सिग्मा इलेक्ट्रॉन और दूसरे के शेयर से पाई बॉन्ड, यानी इसमें एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा रेजोनेंस फॉर्म स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। N in bond length is 112 pm, which is closer to N triple bond, and that is 110 pm. NO bond length is 119 pm, which closer to N double bond length. N2 is a isoelectronic with CO2। तो इस तरह से इसका जनरली स्ट्रक्चर होता है कि ये अपने जो शेयर के इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है और ये इसको दे रहा है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NO। इन NO टोटल 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 फ्रॉम नाइट्रोजन 6 फ्रॉम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। 5 इसके पास होता है और 6 इसके पास। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, and that is why gaseous NO molecule is paramagnetic। Due to delocalization of odd electron in gaseous NO, it has no tendency to form dimer। Its structure is assumed to be resonance hybrid of the following resonating structure। इसके बीच ये odd electron bond बन रहा है, जब पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक अलग से इस तरह से ये शेयरिंग में हिस्सा ले रहा है, तो इस तरह के बॉन्ड को ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो 3 तरह का स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। N डबल बॉन्ड हो, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, एक लॉन पेयर है और एक अनपेयर्ड है। यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में इस तरह से है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, 2 इधर है और 4 इधर है, 6 हो गया और 7 है, तो प्लस चार्ज है इधर, और तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह का है। Thus bond length in NO lies between double and triple bonds।
In liquid and solid state, it dimerizes to N2O2, which is dimagnetic. In NO bond length is 240. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. कहाँ कब? इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ N2O3. N2O3 exists in two resonating structure which may be interconverted in the presence of light of suitable wavelength. In these structure, one is asymmetric while another is symmetric. In symmetric structure, NN bond is much weaker than NN bond of hydrazine. एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें NN इसके साथ 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O, तो यानी दोनों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और एक नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से. दूसरी तरफ इधर ON, यहाँ बीच में O है तो अलग यहाँ पे O था और N डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है. 2 इसके अलग अलग पार्ट भाग किए जा सकते हैं जो कि सेम होंगे, तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर आर गिवन एज, इस तरह से एक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से और तीसरा स्ट्रक्चर. 2 स्ट्रक्चर हैं और ये जो अभी तुमको हमने शार्ट में जो बताया था उसमें जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था वो, तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो इस कंपाउंड का क्या होगा, प्लेनर ज्योमेट्री के साथ इस तरह का होगा स्ट्रक्चर. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NO2 और N2O4. NO2 nitrogen dioxide is an odd electron molecule with 17 valence electron, 5 of nitrogen and 12 of oxygen. It is paramagnetic, क्योंकि जब ओड इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो पैरामैग्नेटिक नेचर है. एन एटम, नाइट्रोजन एटम possess 3 unpaired electrons and 1 lone pair of electron. 2 unpaired electrons from bond with the oxygen, while lone pair form coordinate bond with another oxygen. Thus, 1 unpaired electrons lines with nitrogen. Resonating structure यहाँ ये इस तरह से है. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद बाकी ये दोनों इधर इलेक्ट्रॉन 2 दे पेयर इलेक्ट्रॉन दे के इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और इधर डबल बॉन्ड. दूसरे स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन से इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और इधर डबल बॉन्ड, तो बीच का जो एंगल है वो दोनों में सेम है. इसी और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है एंगुलर वो इस तरह का होगा. ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के. इट इज V-shaped molecule in which ONO bond angle is 134 degree centigrade and NO bond length 120 pm. Now structure of nitrogen pentoxide. X-ray studies have proved that N2O5 is ionic solid because in solid state it exists as nitronium ion, that is NO2 plus, and nitrate ion. So it is called nitronium nitrate. This is nitronium ion and this is nitrate ion. So it is called nitronium nitrate. In vapor state, its ionic structure change to covalent structure. तो ये ionic structure है इसकी और ये दूसरे स्ट्रक्चर है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, और ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका प्लेनर होता है इस तरह से. तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन देखा तुम लोगों ने और नाइट्रोजन के बारे में स्टडी किया, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में. तो आज के क्लास में हमने नाइट्रोजन के बारे में बताया. कल के क्लास में तुम लोगों को अमोनिया के बारे में बताएंगे जो कि नाइट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है.